أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں، اور شروع کرتے ہیں۔ دیکھ رہی ہیں جیسا کہ آج ہم لوگ کریں گے لیسن 14 لیسن تک آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کر رہے تھے جملہ اسمیہ، اور اس وقت تک فعل کا ایک بھی لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا، یعنی نہیں پڑھا تھا۔ لیسن نمبر 15 سے ہمارا فعل شروع ہوا، جس میں لیسن 15 میں ہم نے فعل ماضی پڑھے اور لیسن 16 میں فعل مضارع، اور اب اس میں ہم جملہ فعلیہ کریں گے، اور جس کے لیے آپ کو تھوڑی سی باتیں آج مجھے بتانی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ سب لوگ شروع میں ہی آ جائیں۔ یہ ہے آپ کی فعل ماضی کی گردان، جو کہ آپ سب کو یاد ہے۔ ایک بار پڑھ دیتی ہوں کہ اس طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ کلیئر ہونا چاہیے سارا۔ یہ مد اصلی، یہ نون زبر کی یہ والی مد اصلی بہت کلیئر ہونی چاہیے، ورنہ یہ جا کے آپ کا اس سے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ سارے جو بھی آپ حرکات پڑھیں، یہ سارے مد اصلی کلیئر ہونے چاہیے، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان سب کے مس ہونے پہ صیغے آپس میں مکس اپ ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر باکس کا میننگ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ بولتے وقت بھی بہت کلیئر ہو، لکھتے وقت بھی ساری حرکات بہت کلیئر لگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ تھی ہماری مضارع کی گردان۔ اس کو اس طرح پڑھیں گے: یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلون، یفعلنا، تفعلون، تفعلنا، تفعلینا۔ بس ہم کو یہی گردان یاد کرنی ہے۔ پھر جب کبھی عین کلمہ کی حرکت چینج ہوگی تو ہم چینج کر کے پڑھ لیں گے۔ جیسے اگر عین کلمہ پہ ہم نے دیکھا کہ یفعلو ہے، تو بس پوری گردان پہ پھر ہم عین کلمہ پہ زیر ہی لگائیں گے۔ یعنی میں عین کلمہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دوسرے الفاظ میں اس جگہ دوسرا حرف آ سکتا ہے بیچ میں، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا۔ یاد تو مجھے یہی کرنی ہے، یاد تو ہم سب کو صرف یہی گردان کرنی ہے، لیکن سوئچ کرنا بھی ہم کو آنا چاہیے ڈفرینٹ الفاظ کے لیے۔ اب شروع ہوتی ہے آج کی امپورٹنٹ بات، غور سے سنیں، اور اگر لکھ سکتی ہیں تو لکھنا چاہیں تو لکھیں، اور اگر اچھی طرح سمجھنا چاہتی ہیں تو صرف سنیں۔ یہ الفاظ ہیں آپ کے لیسن نمبر 16 کے۔ لعبا، یلعبو، وہ کھیلتا ہے، وہ کھیلے گا۔ اب دیکھیں، کھیلنے کا عمل اس کے اپنے اوپر ہوا، ٹھیک ہے؟ اس میں اس کو کسی کی ہو سکتا ہے کہ ضرورت نہ پڑے۔ آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ بیٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں پھر حرف جر کے ساتھ آتی ہیں، تو یہاں پہ اس کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز دیکھیں کہ اس کھیلنے کا عمل، اگر میں کھیلنا چاہوں تو مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہوں تو اکیلے بھی کھیل سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لعبا یلعبو، اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے کھیلنے میں، کیونکہ ہر وقت ہم کسی چیز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ شاید دماغ میں آ رہا ہوگا، آگے چلیں گی تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حضر یحضر، وہ حاضر ہوا یا وہ حاضر ہوتا ہے یا ہوگا۔ اب اگر کوئی حاضر ہوتا ہے تو یہ حاضر ہونے کا عمل، یہ اس فعل، یعنی آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ اس کام کا عمل کس پر ہو رہا ہے۔ حاضر ہونے کا عمل اس نے اپنے اوپر ہی کیا ہے، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ کلاس میں پریزنٹ ہے، تو آپ یعنی کوئی سوال آپ کے دماغ میں نہیں آیا، آپ کی بات پوری سمجھ میں آ گئی، بات آپ کی پوری سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ۔ ایسے افعال، اب بات ہو رہی ہے، ابھی سمجھانے کی بات تھی،
पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि वो अफ़आल जिनका अमल खुद अपने ऊपर हो रहा हो, फेल का अमल खुद फाइल के ऊपर हो रहा हो, ऐसे अफ़आल कहलाते हैं। मैं तो चाह रही थी कि टर्म ना लेके आऊं, लेकिन अब मेरी छोटी सी क्लास है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है, तो इसलिए लाजिम कहलाते हैं। तो ये पूरे लेसन 15 में जितने भी अल्फाज थे सब नज़रा यंजुरु, उसने देखा। अब देखने का अमल उसने खुद किया। अभी मैं अगर एक मुतअद्दी लेके आऊंगी ना तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कतला, उसने कत्ल किया। अब इस कत्ल करने का अमल, ये फेल, इस काम को करने के लिए उसे किसी मफूल की, किसी मकतूल की, इसीलिए देखिए जब अरबी पढ़ी तो सुबहान अल्लाह, लोग उर्दू से अरबी सीख लेते हैं, मैंने तो अरबी से उर्दू सीख ली। मकतूल मुझे समझ में आ गया कि मफऊल है ना। मकतूल मतलब जिसका कत्ल हुआ है। तो कत्ल करने का अमल ऐसा है कि वो फाइल अकेले नहीं कर सकता, उसको एक मकतूल की जरूरत है। इसी तरह दरबा, अगर मारा है उसने किसी को, तो अगर मैं पूछूं उसने मारा, तो आप पूछेंगी ना मुझसे किसको मारा, ये सवाल करेंगी ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो हाजिर हुआ या उसने तैरा, उसने स्विमिंग की, खत्म हो गई बात। वो आया, वो गया, आगे कोई सवाल आप नहीं करेंगी, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट इंफॉर्मेशन। तो ऐसे अफाल जिसमें किसी मफऊल की जरूरत ना पड़े, मतलब मफूल वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। याद रखें, बस एक दो टर्म और सुन लें। फेल करने वाले जो काम कर रहा होता है उसे फाइल कहते हैं, ये तो आपको पता है। और मफूल उसे कहते हैं जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा हो। अगर मैं ऐसे कहूं, काम हो रहा हो, वाक़े हो रहा हो, उसे मफूल कहते हैं। तो ये सारे, जलसा वो बैठा, तो वो बैठा। अगर मैं कहूं वो बैठा तो बस हो गई, बैठने का अमल उसने अपनी बॉडी पे किया। लेकिन अगर मैं कहूं वो उसने मारा, तो अब ये मारने के लिए उसको एक दूसरे बंदे की जरूरत पड़ेगी जिसको वो मारे, एक मफूल की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में दरबा, कतला, ये सब दूसरे किस्म के फेल हैं जो कि इस लेसन में सीखेंगे। एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ आपकी रिवीजन के लिए। लाइबा, उसने खेला। बस मैं फेल इसका वाला पढ़ देती हूँ वक्त के बचाने के लिए। हजरा, वो हाजिर हुआ। नजरा, उसने देखा। फरीहा, वो खुश हुआ। सबहा, वो तैरा। जलसा, वो बैठा। खरजा, वो निकला। फरगा, वो फारिग हुआ। जहबा, वो गया। तो ये सारे अफाल क्या है? लाजिम है। इसमें फेल का असर खुद फाइल पे ही हो रहा है, ठीक है, किसी मफूल की जरूरत नहीं। अब चलते हैं आज के सबक में। यह है आपका आज का सबक। इसमें जो भी फेल इस्तेमाल हुए, करा, उसने पढ़ा। अब आप सवाल करेंगे किस क्या पढ़ा? कतबा, उसने लिखा। क्या लिखा? क्योंकि लिखने का अमल किसी और चीज पे होगा ना। शरहा, उसने समझाया। क्या समझाया? समिया, उसने सुना। अखजा, उसने लिया। क्या लिया? फतहा, उसने खोला। और इसी तरह फिर फतहत, ये सब वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये कुछ अल्फाज यहाँ पे थे शुरू में जो कि मैंने, हाँ, ये कता, ये एक और है यहाँ पे। कता, उसने काटा। तो क्या काटने के लिए कोई चीज चाहिए होगी ना, कि जिसको वो काटे। तो ये भी क्या हो गया? अब इसका भी नाम देख लें। इसको कहते हैं मुतअद्दी। पहली बार मैं जब लिखती हूँ तो मैं भी हरकत के साथ ही लिखती हूँ कि हरकत एकदम सही रहें बोलते वक्त। तो मुतअद्दी, ऐसे अफाल जिस जिसको मफूल की जरूरत है, वो काम जिनको मफूल की जरूरत है, जिनको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। इंग्लिश में सिंपली हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। बिना ऑब्जेक्ट के वो काम हो ही नहीं सकता, है ना। कोई अगर कत्ल कर रहा है तो बिना मकतूल के तो वो खड़ा रहेगा अपनी गन लेके, है ना, वो कब नहीं कर सकता काम। तो इस तरह के अफाल जिसमें मफऊल की जरूरत है, वो कैसे अफाल होते हैं? मुतअद्दी अफाल होते हैं। और आज हम यही सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 यही था कि लाजिम और मुतअद्दी पता हो। अब आज देखें आप, ये जुमले जो शुरू हो रहे हैं, करा, कतबा, शरहा, समिया, आप सारे अल्फाज देखें,
یہ جملہ اسمیہ ہے، یہاں اسم سے شروع ہو رہا ہے، لیکن یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک میں اسکرین پہ بس اتنا ہی رکھ دوں. جتنے سینٹینسز آپ کو دکھ رہے ہیں اس پر اسکرین پر اس وقت، میں نے ہائٹ کر دیا، باقی وہ سب جملہ فعلیہ ہیں. کیوں جملہ فعلیہ ہیں؟ کیونکہ وہ فعل سے شروع ہو رہے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں، تو بہت آسان، بس یہی آپ کہہ دیں کہ وہ جملے جو فعل سے شروع ہوتے ہیں انہیں جملہ فعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی جملہ فعلیہ کی بات. اب جملہ فعلیہ کے کیا اجزاء ہوتے ہیں؟ جیسا آپ نے جملہ اسمیہ کے دیکھے کہ مبتدا اور خبر ہوتا ہے، تو یہاں پہ جملہ فعلیہ کے بھی دو مین اجزاء ہوتے ہیں جس کے بغیر جملہ فعلیہ بن نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ بھائی کام ہونا چاہیے، اور کام کو کرنے، کوئی بھی کام آپ کو پتا ہے نا، اسی پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانا جاتا ہے. فاعل اور فعل، جملہ فعلیہ کے دو مین اجزاء کیا ہیں؟ فاعل اور فعل. ظاہر اگر وہ لازم ہے تو ہمیں کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے نا. جملہ فعلیہ تیار ہو جاتا ہے اگر ہمارے اس جملے کے اندر فاعل ہو، کام کرنے والا ہو، اور کام ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صرف کام ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی کام جو ہوا ہے اس کا کرنے والا کوئی ہے، اور یہی بات ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے، بشرطے کہ ہم فری بیٹھے ہوں، بشرطے کہ ہم غور کریں. فری سے میرا مطلب یہ نہیں کہ سونے والا فری، غور کرنے والا، کہ دوسری چیزوں سے اپنے دماغ کو فارغ کر کے کبھی ہم سوچیں کہ یہ کائنات کیسی چل رہی ہے. کار میں اگر پیٹرول نہ ہو تو ہم، ہے نا، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ پیٹرول کم ہو رہا ہے، فوراً پیٹرول اسٹیشن، ورنہ کہیں بیچ میں ہی نہ کچھ گڑبڑ رک جائیں ہم. جوپیٹر میں پیٹرول کون ڈال رہا ہے؟ ہمارے ارتھ کو، سبحان اللہ، جو 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے سورج کے گرد چکر کاٹ رہی، ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. ویری ویری اسٹرینج، بہت زیادہ حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے اگر ہم غور کریں تو. ایک سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر. انڈیا پاکستان میں گاڑیاں ہی چل رہی ہوتی ہیں 30 کلومیٹر پر آور پہ، گھنٹے میں 30 کلومیٹر. اور یہاں سیکنڈ کی بات میں کر رہی ہوں، منٹ کی بات نہیں کر رہی. ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کی سپیڈ سے زمین چل رہی ہے. کون چلا رہا ہے؟ تو اس عمل کا جو بھی میں نے بتایا، اس کا فاعل اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. کسی بندے کے اندر، کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. تو اسی چیز سے ہم اللہ کو بھی پہچانتے ہیں الحمدللہ، کہ کوئی بھی فعل اگر واقع ہوا ہے تو فاعل ضرور ہے. فاعل کے بغیر فعل واقع ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ دو مین چیز ہو گئی. پھر کسی فعل کو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو قتلہ کا اگزامپل دیا، تو یہ ایڈیشنل چیزیں بھی آتی ہیں. اور جیسے آپ ان آڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے متعلق، میں نے کہا تھا نا متعلق خبر، تو اسی طرح متعلق فعل بھی آتا ہے. کچھ ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ متعلق ہوتی ہیں، لیکن پہلے تو آپ مین چیز دیکھ لیں. فاعل پلس فعل. کچھ فعل ہوتے ہیں وہ اگر یہ لازم ہے تو بس اتنی ہی ضرورت ہے، اس سے آگے ضرورت ہی نہیں ہے. اور لیسن نمبر لاسٹ لیسن میں آئی تھنک 16 میں آپ نے یہی والے کیے تھے جملے. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اس لیسن میں چونکہ ہم متعدی سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے، تو اب ہم مفعول بھی لے کر آئیں گے. فعل کے الفاظ تو آپ اسی پیٹرن سے لے لیں گے. اگر ماضی کی بات ہوگی تو اس باکس میں سے کوئی آ جائے گا. ابھی یہی سب ہم لوگ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ غور سے سن رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کلاس انجوائے کریں گے. اگر مضارع کا سینٹینس ہوگا تو ان 14 باکسز میں سے کوئی لے لیں گے. تو یہ تو ہو گئی فعل کی بات. ٹھیک ہے، تو فعل آپ ان دونوں ٹیبلز میں سے لے لیں گے. جیسا بھی سینٹینس ہوگا، ماضی کی گردان میں سے کوئی لفظ آ جائے گا یا مضارع کی گردان میں سے کوئی لفظ آ جائے گا. اب آتے ہیں فاعل کے اوپر. فاعل کیسے پہچانیں گے یا فاعل کیسے ہم یوز کریں گے؟ فاعل کا ہم عربک میں ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کو حالت رفع یا رفع میں لے کے جائیں گے. اور سلینگ میں ہم کہتے ہیں رفع. حالت رفع میں فاعل ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے، رہے گا. اور
आपको जैसे पता है कि ये किताब सिंपल से लेके चलती है और बड़ी तेजी से हमको लेके चलती है और बहुत सारी चीजें सिखा देती है। तो यहाँ पे वाहिद ही की बात हो रही है, अभी तक हम लोग मुसन्ना पे इस बुक में नहीं आए। तो वाहिद इसम का तो आपको पता है कि या तो रफा की हालत या तो सिंगल हरकत से होगी पेश से, या पेश तनवीन। ठीक है, ये फाइल का एराब होगा। मफूल का एराब होगा या ये फतहा होगा सिंगल, अगर अल हो गया तो सिंगल फतहा, और अगर अल नहीं है तो फतहा तनवीन। इस तरह बस ये चीजें हैं और इन्हीं को लेके अब पूरा लेसन चलेगा। आपको ख्याल रखना है कि फाइल का एराब रफ होगा, मफूल का एराब नस्ब होगा, और फेल तो हम वहां से पिक करेंगे, देखेंगे कि वो कैसा है। वाहिद मुजक्कर गायब है तो उसका वाला बॉक्स से पिक करेंगे, और आई विल बी डूइंग, मैं करूंगी। आप बस सुकून से सुनेंगी आज, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इस लेसन को रिपीट करेंगे अगले हफ्ते आप लोग करेंगी। लेकिन बहरहाल कहीं चली मत जाइएगा, यहीं रहिएगा कि आज तो हमें बुलाएंगी नहीं तो मैं चलूं कहीं पे नहीं। आप पूरे उससे यहीं बैठे जब तक मैं यहां पे हूं। जुमला फेलिया, फेल से शुरू होने वाले जुमले को जुमला फेलिया कहते हैं। तो हमेशा ये दोनों टेबल में से किसी से शुरू हो रहा होगा, क्योंकि देखिए अगर ये पहले आ जाए ना तो ये जुमला इस्मिया हो जाएगा, जैसा कि आप यहां देख रही हैं ये स्वादु। ठीक है, ये जुमला क्या हो जाएगा, इस्मिया, क्योंकि इस्म से शुरू हो रहा है। तो आपके इस लेसन में दोनों की ही प्रैक्टिस आपको दी जा रही है। और जाहिर है हम यहाँ तरकीब तो नहीं कर रहे हैं, बस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क़रअ, उसने पढ़ा। क़रअ, उसने पढ़ा। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि जब फाइल जाहिर हो जाता है तब हम उसने पढ़ा नहीं कहते, फिर हम इसी फाइल को लेके कहते हैं स्टूडेंट ने पढ़ा, तालिबे इल्म ने पढ़ा। फिर क़रअ का हम वो तर्जुमा उसने वाला नहीं करेंगे, बल्कि फाइल को जाहिर हो जाने की सूरत में यहां से ले लेंगे। तो क़रअ तिलमीज़ुन किताबन, आप देख रही हैं, इससे हमको पता चला कि स्टूडेंट ने किताब को पढ़ा। अब चूंकि तनवीन है तो मैं तनवीन वाला उर्दू में, इंग्लिश में हम जब इसका तर्जुमा करते हैं अ स्टूडेंट रेड अ बुक, दोनों जगह हमने अ लगाया और हमारा तर्जुमा अरबिक से इंग्लिश में सही हो गया। उर्दू में आपको पता है कि अ और एन जैसे अल्फाज नहीं है, तो हम उसकी जगह इसी वजह से एक लगा ले रहे हैं ना, एक लगा रहे हैं, एक या कोई लगा रहे हैं। तो इसका तर्जुमा जब करेंगी आप, तो आप नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला तो आप करेंगी एक तालिबे इल्म ने एक किताब को पढ़ा, या एक तालिबे इल्म ने एक किताब पढ़ी। ठीक है, जिस भी तरह से उर्दू बोलते हैं उस तरह बोल लेंगे, बस ये हमारी जो ग्रामर की चीजें हैं वो बस क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक लगाएंगे क्योंकि ये तनवीन बता रही है कि नकिरा है दोनों अस्मा हमारी। अब देखें आप, ये हमने कैसे पढ़ा कि ने का, हमेशा फाइल के लिए हम ने का अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं उर्दू में, और मफूल के लिए को का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको पढ़ा। और कभी कभी ये नहीं भी बोलते, किताब पढ़ी भी बोल देते। तो इससे ही पता चलेगा। अब एक मशहूर और बहुत मारूफ जुमला, इसको याद कर ले आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैं हर कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक जुमला देती हूँ ना, तो इस फाइल फेल और मफूल के लिए कत और जुमला इस्मिया की स्ट्रक्चर के लिए कतला ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जेर जबर पेश बहुत ख्याल से पढ़ना है, वरना कातिल मकतूल बना देंगी, मकतूल को कातिल बना देंगी। अल्लाह ना करे और अगर इस तरह की चेंजेस हों तो आप खालिक और मखलूक का तो मैं उल्टा बोलूंगी भी नहीं, है ना। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हम कर जाएंगे अगर एराब की गलतियां करें। इसीलिए एराब का मतलब ही है अरबी बनाना। अगर एराब नहीं सीखा तो अरबी नहीं सीखी, सब गलत हो जाएगा। कतला, कतला, उसने कत्ल किया। लेकिन हमें आगे एक फाइल नजर आ गया, तो अब हम उसने नहीं करेंगे तर्जुमा। रफा की हालत में जो है वो फाइल है, और जो नस्ब की हालत में वो मफूल है। तो दाऊद ने जालूत का कत्ल किया। ठीक है,
बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर पे अब सारी चीजें हमारी पूरा ये चलेगा, फाइल और मफूल का इंशाअल्लाह ताला। क़रअत तिलमीजुल किताबा, अब देखिए क़रअत तिलमीजुल किताबा, ये अल के साथ है तो हमें जाहिर है, आपको पता है हुरूफ कमरिया और शमसिया के हिसाब से ये शमसी है और ये कमरी है, तो हमें उसी तरह से पढ़ना है। तो अब यहाँ पे करेंगे तालिबे इल्म ने किताब पढ़ी, दोनों जगह से अब एक नहीं लगाएंगी आप, क्योंकि अब क्या हो गया, मारफा हो गया, अल हो गया, तो अब हम एक या कोई लगा के तर्जुमा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तालिबे इल्म ने किताब को पढ़ा या तालिबे इल्म ने किताब पढ़ी, जो भी बोलना चाहे आप। कतबा वलदुन दरसन, ठीक है, याद रखें इसको द रा नहीं कहेंगी, दरसन, रा पे साकिन करेंगी तभी ये इसम बनेगा। अगर दरसन कर देंगी तो ये दरसा कहीं आ रहा होगा, शायद कहीं होगा आगे लेसन में, फिर वो फेल बन जाएगा। इसको इस्म रहने के लिए आइन कलमा साकिन होना चाहिए, ठीक है, दरसन। तो यहां पे हम लोग कतबा वलदुन दरसन, तो एक लड़के ने एक सबक लिखा, ठीक है, एक लड़के ने एक सबक लिखा। कतबल वलदु दरसा, अब यहां देखिए ये बता रहा है, ये नस्ब की हालत बता रही है मफूल है, और रफ की हालत बता रही है कि ये फाइल है, और बस इसी तरह समझ के तर्जुमा कर लेते हैं। लड़के ने सबक लिखा, बस ये तर्जुमा होगा, क्योंकि अब हमें अल वाला तर्जुमा अल वाले अल्फाज दिख रहे हैं, तो हम नकीरा के उर्दू में जो अल्फाज एक या कोई इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करेंगे। शरहा मुअल्लिमुन दरसन, एक टीचर ने एक सबक समझाया, ठीक है, शरहा समझाया। अभी मैं भी लिख नहीं रही हूं और आप भी ना लिखें, रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा अगर मीनिंग किसी चीज की होगी अगर तो। वैसे तो मुझे लग रहा है ये सारे अल्फाज जो अच्छी उर्दू बोलते हैं वो लोग शायद बोलते ही होंगे। तो एक टीचर ने एक सबक समझाया, शरहल मुअल्लिमु दरसा, अब ये दरसा ही बोलना है, दरसू कर दिया बस पूरा गलत हो गया, है ना, अल मुअल्लिमु दरसू कर दिया, फिर तो ये मुअल्लिम साहब की ये सिफत बन जाएगी, है ना। देखिए सब चीज पहचानने की कोशिश करें। तो एराब बहुत ख्याल से पढ़ना है। शरहल मुअल्लिमु दरसा, टीचर ने सबक समझाया। समिअ तिलमीदुन शरहा दरसिन, शरहा दरसिन सबक की तशरीह, ये देखिए ये क्या शरहा, ये एक्सप्लेनेशन, मैं इंग्लिश में लिख दूं यहां पे शरहा, ये अब इसको इस्म है ये, ठीक है। अभी तक देखिए जो मैं बता रही थी ना, फेल में यहाँ पे जबर आया, लेकिन इस्म जब होगा तो इसको र लिखेंगे, शरहा। इसको मैं एक्सप्लेन करूं, चलिए ठीक है एक्सप्लेन करती हूँ। ये था एक्चुअली शरहुन, ठीक है, शरहुन, ये हम इसको समझा रहे थे आपको यहाँ पे कि ये शरहा दरसिन क्या चीज है, शरहा दरसिन कैसे बना। तो ये शरहुन था और दूसरा इसम था दरसुन, ठीक है। अब ये मुदाफ बन रहा है और ये मुदाफ इलैह, सबक की तशरीह। अब इसम को क्या कहते हैं उर्दू में, एक्सप्लेनेशन। शरहुन का मतलब होता है उर्दू में तशरीह, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन। तो अब जब ये मुदाफ बनेगा तो इसकी तनवीन चली जाएगी और ये बन जाएगा शरहु दरसिन, क्योंकि ये बन गया मुदाफिल है। और देखिए शरहु दरसिन, लेकिन अभी भी हम नहीं पहुंचे, क्योंकि अब इसको मफऊल बनना है। मफऊल क्या, इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, तशरीह के ऊपर काम हो रहा है कि उसने क्या सुना, स्टूडेंट ने सुना, क्या सुना, सबक की तशरीह को सुना, ठीक है। ये चीजें मफूल टेंजिबल नॉन टेंजिबल कुछ भी हो सकती हैं। अब तशरीह कोई ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज हो जिसको छुआ ही जाए, ठीक है। तो ये
शरहु, अब क्या किस में चेंज हो जाएगा? ये आपको पता है कि मफऊल क्या होना चाहिए? हालत नसब में होना चाहिए। तो अब मुरक्कब इदाफी जब हालत नसब में जाता है, बहुत गौर से पॉइंट सुनिए, जब मुरक्कब इजाफी मफऊल बन के आएगा तो उसका मुदाफ एराब चेंज करेगा। मुदाफ इलैह तो मजबूर है, वो तो रहेगा ही हालत जर में। इससे पता चल जाता है कि ये अब नसब में है। ये हमने पिछली बार भी बताया था और कहा था कि पॉइंट नोट कर ले कि मुरक्कब इदाफी का एराब मुदाफ से पता चलता है और वुसअत मुदाफ इलैह से पता चलती है। ठीक है, मैं बार बार बोलूंगी कि सुन सुन के ही आपको याद होगा। ये नकिरा है तो ये पूरा नकिरा ही हुआ। ठीक है, इसका तर्जुमा करेंगे तो करेंगे, एक तालिबे इल्म ने एक दर्स की तशरीह सुनी या किसी दर्स की तशरीह सुनी, तो किसी या एक लगा के इसका तर्जुमा करेंगे। क्यों लगाया हमने? क्योंकि दर्सिन, इससे यहां तनवीन से मुझे पता चल गया इस पूरे मुरक्कब की वुसात। इसी तरह एराब इससे पता चलते हैं, तो ये हालत नसब में है, इससे हमको पता चल गया कि ये मफूल है। तो याद रखें कि मफूल एक सिंगल लफ्ज भी हो सकता है दरसन की तरह, और मुरक्कब भी हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि कहीं कहीं तौसीफी भी आएगा, तो मुरक्कब इदाफी मफूल बन के आ सकता है, जो कि आपने यहाँ देखा। एक तालिबे इल्म ने एक दर्स की तशरीह, मुरक्कब इदाफी का ऐसे ही करते हैं ना, दर्स की तशरीह ऐसे तक करती है ना ताकि लगा के। तो एक तालिबे इल्म ने एक दर्स की तशरीह सुनी, समियत तिलमीदु शरह दर्सी। तो ये चीजें ख्याल रखने की हैं कि जब भी आपको मफूल, मैं वापस चलती हूँ, जिस चीज को आपको ये पता है कि वो फाइल है उसको रफा की हालत में रखेंगी, मफूल है उसको नसब की हालत में रखेंगी। इसी तरह से ये पूरा कैसे हमने डिसाइड किया कि ये मफूल है? क्योंकि यहाँ पे हमको मुदाफ हालत नसब में मिला, तो हम समझ गए किसी भी इस्म के, आप याद रखें इस बात को कि कोई चीज रफा की हालत में है तो फिर आप आगे बढ़ सकती हैं, वो बिला वजह भी कुछ हो सकती है बात, है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको होना ही था वैसे। लेकिन अगर नसब और जर में कोई चीज गई है तो उसकी कोई वजह है, तो ये यहाँ पे मफऊल बना है इसलिए। और सिर्फ यही एक वजह नहीं होती, ये भी बात याद रखें, बहुत सी और वजूहात भी होती हैं। मेन वजह किसी भी इस्म के रफा और नसब में जाने की द मोस्ट कॉमन वजह यही होती है कि फाइल रफा में होता है और मफूल नसब में, और दूसरी भी 8-10% और चीजें भी होती हैं। ठीक है, लेकिन मेन वजह यही है, और फिलहाल हम जुमला फेलिया कर रहे हैं उसमें हमें यही चाहिए। आगे चलते हैं, यहां भी देखिए, समियत तिलमीदु शरह दर्सी, स्टूडेंट ने सबक की तशरीह को सुना। अब हम एक और कोई नहीं लगा सकते क्योंकि तिलमीदु स्टूडेंट भी मार्फा है, नोन है, और सबक भी जिसकी तशरीह भी, जो जिस सबक की तशरीह हुई है वो सबक भी पता है। तशरीह और एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन भी लिख दूं और तशरीह भी लिख दूं इसकी जगह पे, शरहा तशरीह जिसका की मतलब है एक्सप्लेन, अखदा तिलमीजुन कुर्रासतन, एक तालिबे इल्म ने एक कॉपी ली। फिर अब हम उसी, अब इंट्रोड्यूस कर दिया, अब उसी तालिबे इल्म के बारे में बात हो रही है कि तालिबे इल्म ने कॉपी को खोला, नोटबुक को खोला। फतहल बुस्तानी जू, अब देखिए ये फतह तनवीन बता रही है कि ये फाइल है। बाबल जुनैनती, अब ये बाबल जुनैनती, ये आपको पता है ये मुरक्कबे इदाफी है, और इसके फतह ने, मुदाफ के फतह ने मुझे बता दिया कि ये मफऊल है। तो अब तर्जुमा कैसे करेंगे? माली ने बागीचे के दरवाजे को खोला। ठीक है, माली ने, अब बागीचे के दरवाजा तो करती है ना तर्जुमा, कोई मैं नई चीज और मुश्किल चीज नहीं बोल रही। बागीचे का दरवाजा तो आपको पता है। अब चूंकि मफूल मैंने बताया को लगाते हैं, इसलिए उसके बाद मैंने को लगाया। माली ने बागीचे के दरवाजे
ये को इस जबर से पता चल रहा है, को खोला, फतह खोला। कतल बुस्तानी गुस्न शजरी, ठीक है, ये जेर है यहाँ पे। तो माली ने पेड़ की शाख, और ये को मफूल यहां से पता चल रहा है, को काटा। माली ने पेड़ की शाख को या ब्रांच को काटा। कता मतलब काटा, माजी का वाहिद का सेगा जो कि माली के लिए इस्तेमाल हुआ। फिर सुआदू, ये फोर्थ है। देखिए हम ये कह रहे थे ना कि बिल्कुल आपको मैं कैसे बताऊं, कैसे कहूं कि ये दोनों टेबल ऐसे याद कर लें कि बस नजर पड़े और आप पता चल जाए कि आप किस बॉक्स में आ गई, और उस बॉक्स में कौन सी शख्सियत बैठी हुई है। सुआदू फतहत, तो सुआद ने खोला। अब ये फोर्थ वाला सेगा है, नंबर भी पता होने चाहिए। अगर मैं पूछूं, नहीं पूछूंगी मैं अभी, बहुत सारे सबक में नहीं पूछूंगी, लेकिन आपको इस बात की आदत डालें कि ये फोर्थ सेगा है, ये 13th सेगा है, ये 7th सेगा है, फौरन आपको पता चले। तो ये फोर्थ सेगा है, देख लें फोर्थ बॉक्स में है, 1 2 3 फोर्थ है इस तरह से। तो स्वाद ने खोला, क्या खोला, नाफिजत, किस चीज को खोला। अब देखिए खोला, अगर ये खोला है तो मुतअद्दी है ना, किसी चीज को खोला होगा, ये चीज अमल अपने ऊपर तो नहीं होगा। स्वाद ने खोला, फौरन दिमाग में आएगा क्या खोला, तो बस इसी को कहते हैं मफऊल। और मैं थोड़ा सा और आपके कान में बात डाल दूं, मफऊल भी कई तरह के होते हैं, जिन पे काम का डायरेक्ट असर हो रहा होता है, उसे कहते हैं मफऊल बिही। बस सुन ले, अभी कुछ आपको नहीं करना है क्योंकि बाकी वाले मफऊल पढ़ाए ही नहीं जा रहे। मफऊल बिही, तो ये सारे मफऊल बिही है, इन पे डायरेक्ट खोलने का अमल इसी के ऊपर हो रहा है। तो नाफिजता, ये नाफिजता की जबर ने बता दिया कि ये मफऊल है, क्योंकि अल हुजरती को तो जर में होना ही है मुरक्कब इजाफी के मुदाफ इलैह की वजह से। तो कमरे की खिड़की, ये तो पहले से आपको आता है, कमरे की खिड़की, बस उसी में को लगाए, ये मफूल वाला को लगाए। स्वाद ने कमरे की खिड़की को खोला। स्वादु समियत, अब ये देखिए फिर समियत, हमें जैसे ही ता साकिन वाली दिखेगी, और ये सारे हमें ये जेर जबर भी पहचान में आनी चाहिए। स्वाद ने क्या सुना, सौतल मुअज्जिनी। अब सौतुल मुअज्जिनी नहीं कह देंगी आप, सौतल मुअज्जिनी, क्योंकि मफूल है ना, तो सौता आएगा, ता पे जबर आएगी। इसको, इस पूरे मुरक्कब को मफूल बनना है। मफूल बनने के लिए मुदाफ को क्या होना पड़ेगा, हालत नस्ब में। तो स्वाद ने मुअज्जिन की आवाज, सौतुल मुअज्जिनी, तो मुअज्जिन की आवाज थी ना, बस वो ता लग गई, ता पे जबर आई, और इससे पता चल गया कि अब हमें इसमें को भी लगा लेंगे। तो स्वाद ने मुअज्जिन की आवाज को सुना, ये समियत सुना। अना करअतुल जरीदता, अना का मतलब है ये मैंने, ये आपकी 13th बॉक्स वाली जमीर है अना, और करअतु ये भी 13th जमीर वाला फेल है, ये देखिए, ठीक है, करअतु फअलतु के वजन पे। तो अना करअतुल जरीदता, अब ये जरीदता ही बोलना होगा हमें, तभी ये मफूल होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि चीज अच्छी तरह आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो मैंने अखबार को पढ़ा, मैंने कहा को लगा के कर ले तर्जुमा, तो थोड़ा सा अभी, जिसे कहते हैं ना, बिगनर को अरबिक में मुब्तदी कहते हैं, तो अभी चूंकि हम लोग मुब्तदी है यहाँ पे, तो हम ये को वो लगाएंगे, हम उर्दू की फर्राटेदार उर्दू नहीं बोलेंगे, हम अपने तर्जुमे को थोड़ा सा ग्रामर को सही से रिटेन करने के लिए, समझने के लिए, वरना तो हम कह दें मैंने अखबार पढ़ा काफी है, तो तर्जुमा एकदम सही है, और यही तरीका भी है बोलने का। हम ये तो नहीं कहते मैंने अखबार को पढ़ा, लेकिन अभी आप बोलेंगी मैंने अखबार को पढ़ा, जिससे मफूल का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम जबर की वजह से को लगा रहे हैं, और इसको मफूल बनाने के लिए ये जबर जरूरी है। तो जरीदा का मतलब होता है अखबार, मजल्ला का मतलब होता है मैगजीन। अंता करअता, अब देखिए अंता और ये करअता, अब ये हो गया आपका कौन सा वाला बॉक्स,
7th बॉक्स हो गया। ताकि ज़मीर अंता अगर ये ना भी होता, ये ना भी लगता, तो भी कराता काफी था, तुम हम तर्जुमा कर लेते कि तुमने मैगजीन पढ़ी, है ना। तुम एक लड़के ने, आदमी ने, अंता क्या बता रहा है और कराता ता ज़बर क्या बता रहा है कि यू मेल, तो तुमने मैगजीन पढ़ी। हुआ, जब जब अगर कुछ होगा तो प्लीज हैंड रेज करें, ठीक है। अगर किसी को कुछ मसला है तो हैंड रेज करें, क्योंकि मैं आज आपको ले ही नहीं रही ना, तो देख लूंगी इंशाअल्लाह ताला कि वहां कुछ एक्सप्लेन करना हो। हुआ करा, अब ये देखिए अगर ये हुआ ना भी होता तो करा के अंदर हुआ की जमीर छुपी थी, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जाहिर भी कर दी इन्होंने। हुआ, उसने पढ़ा, क्या पढ़ा, ये कुरआन पे यहाँ पे जबर आएगा, अल कुरआन अल करीमा। क्यों, देखिए मुरक्कब तौसीफी है, तो उसने कुरान को पढ़ा। अब ये कुरान की सिफत ये है, जब कुरान नसब की हालत में गया तो उसकी सिफत को भी नसब में जाना पड़ेगा, तो होगा हुआ कर अल कुरान अल करीमा। अब ये नहीं करेंगे कुरान अल करीमी, नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुरक्कब तौसीफी है जो कि क्या बन के आ रहा है, मफूल बन के आ रहा है। मैंने कहा था कि मुरक्कब इदाफी भी मफूल बन के आ सकता है, इवन फाइल बन के भी आ सकता है, और अभी आएगा भी। इसी तरह से मुरक्कब तौसीफी मफूल बन के भी आ सकता है और फाइल बन के भी आ सकता है। अगर फाइल बन के आएगा तो ये पूरा का पूरा रफा की हालत में होगा, यहाँ पे मफूल है तो ये नसब की हालत में है। हिया क़रअतिल हदीस शरीफा। अभी देखिए यहाँ पे समझे, ता हिया के साथ तो ता साकिन वाली आती है ना, मैं ऊपर बार बार लेके चलती हूँ जिससे ये टेबल, हिया के साथ तो ता साकिन वाली लगती है ना। ये तुम मुअन्नस के साथ ती वाली लगती है, तो इस ती को भी समझ लें। दिल तो चाहता है कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ, कोई परेशान ना हो जाए, लेकिन ये भी समझ में दिल लगा रहता है कि हो सकता है किसी ने ये बात पकड़ ही ली। हिया क़रअत था, ये हिया के साथ त साकिन वाली आती, जेर वाली नहीं आती, लेकिन ये भी साकिन और ये भी साकिन। कैसे पढ़ती हैं आप, तो ये जेर इस जमीर पे तो ता साकिन ही है, ये टेम्पररी जेर है, आरजी जेर है, जो कि पढ़ने के लिए लगाई गई और यहाँ पे लिख दी गई आपके लिए। क्यों, क्योंकि दो साकिन एक साथ पढ़े नहीं जा सकते थे। तो अगर यहाँ आपसे पूछें कि यहाँ पे कौन से बॉक्स का फेल है, तो आप 4th ही बॉक्स कहेंगी, ठीक है, 9th बॉक्स नहीं कहेंगी। इस तरह की जेर से कंफ्यूज नहीं होगी। और अगर अभी मुश्किल लग रहा है तो ये मुश्किल भी नहीं, जब भी कुछ ऐसा मुश्किल लगे तो सोचे कि अभी हम सुन रहे हैं, पहली क्लास है, शुरुआत है हमारी, तो ये चीजें ऐसी लग रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें ऐसी हो जाएंगी, बिल्कुल जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, है ना, वो भी तो हमने पढ़ाई है, तो बिल्कुल उसी तरह, बल्कि उससे भी आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो हिया क़रअतिल हदीस शरीफा, और ये उसने, माइक प्लीज, उसने हदीस शरीफ को पढ़ा, उस लड़की ने हदीस शरीफ को पढ़ा। ये जेर वाली बात सबकी समझ में आ गई? जी मैम। जी मैम। ठीक है, नहीं समझ में अगर कोई चीज आए तो इत्मीनान रखे, रिकॉर्डिंग आ रही है, बार बार उसी जगह जाके, जरूरी नहीं है पूरे 1 घंटे की सुने, आपको अंदाजा हो जाता है कि ये 15 मिनट लग गए होंगे यहाँ तक मुझे पहुंचने में, उस जगह स्क्रॉल करके वो स्क्रीन पे ये चीजें भी दिखती रहती हैं, तो वहां पहुंच जाए और उस चीज को 4 बार 5 बार 10 बार सुन के याद कर लें। अंति क़रअतिल क़िस्सतल जय्यिदता। अब ये देखिए, ये मुरक्कबे तौसीफी है, जब ये मफूल हुआ तो इसकी सिफत भी नसब में चली गई, ठीक है। इसकी तो बेचारे की मजबूरी थी, ये तो मुदाफ इलैह, तो हालत जर में ही रहना है, कुछ भी हो जाए, इसको हम बस यहीं पे चेंज होता है, मुदाफ में ही चेंज होता है, लेकिन मुरक्कब तौसीफी पूरा का पूरा चेंज होना होता है, क्योंकि इसकी ये कंडीशन है कि सिफत को हर हाल में फॉलो करना है। तो जैसे ही मौसूफ मफूल बना, उसकी सिफत भी नसब में चली जाएगी, ठीक है। तो अंती, तुमने, अब एक लड़की से बात कर रहे हैं,
तुमने अच्छा, जय्यद कहते हैं अच्छे को, जदीद कहते हैं नए को, जय्यद कहते हैं अच्छे को। जब किसी बच्चे को कमेंट दे रहे होते हैं अरबिक नोटबुक में, तो वहां भी लिखते हैं जय्यद। अंती करतिल किस्सतल जय्यदा, तुमने अच्छा किस्सा पढ़ा। अब एक नहीं लगाएंगे, जो अल के साथ है वहां पे एक नहीं लगेगा, ठीक है। तो तुमने अच्छा किस्सा पढ़ा, और ये पढ़ा हम एक लड़की से कह रहे हैं, पढ़ी तो नहीं बोलते ना, तुमने एक अच्छी किस्सा पढ़ी ऐसा तो नहीं बोलते, लड़की से भी पढ़ाई बोल देते, लेकिन याद रखें ये लड़की है। अंति करअते सीरत तय्यबा, तय्यबता, तय्यबता मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि आपको, मैं इस वक्त अरबिक बोल नहीं रही हूँ, बल्कि ग्रामर के एंगल से मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं साकिन नहीं कर रही हूँ, आखिर तक ताए मरबूता और फतहा सब पढ़ रही हूँ, वरना तो ये सीरत तय्यबा पढ़ देना चाहिए था, इसको हा साकिन कर देना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्रामर चल रही है यहाँ पे। एक बार फिर लड़की से ही बात हो रही है। अंति करतिस, इसमें क्या हो गया कि तुमने, है ना, तुम एक लड़की ने, तुमने सीरा पाक, तैयबा कहते हैं पाक को, सीरा पाक को पढ़ा। ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट, और मुझे लगता है कि यहीं पे हम रोक लें तमरीन इंशाअल्लाह ताला, बल्कि लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेसन यहाँ पे हो कंप्लीट, सिर्फ हमारे पास 3 ही मिनट बचते, तो बस यहीं तक करते हैं इंशाअल्लाह ताला, और आप भी बस यहीं तक कर लीजिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।